Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome again to our next class of business. Today we are going to discuss further the leadership, and today we are going to discuss the different leadership styles. Leadership styles, we have basically four types of leadership styles, and namely the autocratic style, the democratic style, the paternalistic style, and the laissez-faire style. So we'll discuss one by one all these styles. The first one is the autocratic leadership style. It's a style where leadership that keeps all decision making at the center of the organization, mostly at the top notch of the organization. Here, all the decisions are taken by the leaders, and they don't bother to give information to the staff, to the lower level staff, or very little information is given to the lower level staff. Most of the time, the information is kept at the top level. And there is mostly one-way communication, means the communication from top to bottom. There is no other way of communication. And workers have very limited information about the business decisions, about the business environment, and about the directions. They are given the direction mainly, but what type of information, a very little information is given to the workers at the lower level of the organizations. Now, what happens because of this leadership styles? Because there is no involvement of the staff, there is no information flow from the staff to the top level, it demotivates the staff, because they believe that the top level of the organization does not believe in their work. They do not give them the responsibility. They do not bother to involve them in the decision making, in any discussion. Therefore, they get demotivated. And if our staff gives some input for something, for some issue, for some problem, and their input is not taken seriously by the top management, and this again demotivates the staff. If this is very demotivating, then why this leadership style is there? Because in some of the organization, this style prevails and this style is workable. Most of the time, this leadership style works in the defense forces and the police, where you need quick decision making and you do not need any type of discussion, or a very limited discussion is required. Or mostly in the times of crisis, when you need your decisive actions, very quick decisions are required, then that would this leadership style would be most appropriate in such situations, in the crisis situation. That is why this autocratic leadership style prevails. Okay, then the second leadership style, which is termed as democratic style. Democratic style is a leadership style where active participation of all the people is promoted. Here, they believe in the responses of the staff. They believe in discussing the different matters with the staff. They believe in the active participation of the staff. So, encouragement is there in this style. And naturally, when the encouragement is there, when they involve the lower level staff, it means there is a two-way communication. Means from top to bottom and then bottom up. Both way communication are there.
and workers are given the complete information about the business's decisions, and they allow staff to involve in all the decision making, and they value the information given by the lower level staff. So it's a very good leadership style, it seems, but naturally uh, there would be some drawbacks as well. When you are involving all the staff in your decision making, in your consultation, then it means that it's a very lengthy and time consuming process. And at times, you know, quick decision making is required. And if all the time you go on for discussing different matters and different issues with all the staff, and you require their input, then that quick decision making, especially in the dynamic situation, that would be not appropriate, and that will lose our business as well. And some issues are too sensitive for the staff to be involved in those issues. Then naturally you will not involve those people in those sensitive issues, and those sensitive issues may be job losses or some very secret uh, areas, like if you are developing a new product or developing a new process and you don't want to lose your information to their competitor, you will not involve the low level staff, because uh, that there is a risk that you will lose the information to your competitor. So at times you don't go for consultation of the staff. But in most of the cases, here in the democratic style of leadership, you encourage the involvement of the staff. And how and where these uh, leadership style can be applied? Naturally, in the organization where you have an experienced and uh, flexible workforce, there you can apply this democratic style. The businesses which accept that workers can contribute positively and fully to the decision making process, those businesses involve this leadership style. And especially where you have a changing situation and you need to have the input from your lower level staff, in such organization you encourage this democratic style of leadership. The next leadership style comes as the paternalistic style of leadership. What is this paternalistic? Literally, paternalistic, as the name implies, it means father like, parents like. So this style of leadership is same like the style of our parents, our father. What they do basically, they always think better for their uh, all their sons and daughters and all the things. But basically, the style is the same. They think that whatever they are doing for the betterment of their staff. Same goes as the father. मतलब ये कि अब अब्बा जान ने कह दिया कि भाई ये हम करने लगे हैं, इसमें हमारा फायदा है, तो फिर जब अब्बा जान ने कह दिया तो फिर वो होगा. ठीक. At times there is some consultation जो कि वालिद साहब अपने बच्चों के साथ कभी बिठा के कंसल्ट कर भी लेते हैं, लेकिन most of the time the decisions are taken by the father. So in this style of leadership, same happens. Sometimes the top management take the uh, take the low level staff and get their input, consult them, but in most of the cases, they think that they are doing for the betterment of their staff and they employ the decision. और वो क्यों ये करते हैं? Because they want people
to be happy. They basically want to satisfy the needs of the people. और ये हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरीज में कि इसमें मैस्लोस की जो हायरार्की है उसको भी फॉलो किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इस लीडरशिप स्टाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं जैसे फादर लाइक फिगर होती है, और वो ये चाहते हैं कि उनके वर्कर्स खुश रहें और उनके बेहतरी के लिए काम किया जाए। अब नेचुरली ये होता है तो लग तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए घर के माहौल में भी तो पेरेंट्स ऑलवेज डू गुड फॉर देयर सन्स एंड डॉटर्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी यही किया जा रहा है, लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है कि कुछ वर्कर्स दे बिकम डिससेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन तो की जा रही है, कभी कभी की जा रही है, लेकिन उनकी बात को एक्चुअल जैसे वो चाहते हैं सुना नहीं जा रहा, यानी इन्फ्लुएंशियल नहीं है। उनको अगर कंसल्टेशन में इन्वॉल्व भी किया जा रहा है तो सिर्फ बात को सुना ही जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो जिसकी वजह से वर्कर्स यहाँ पे भी कुछ डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं। और ये आमतौर पे उन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है ये स्टाइल जहाँ पे कि इन एक्चुअल जो आपके सुपरवाइजर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में बड़ा कंसर्न रखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके वर्कर्स खुशी खुशी और अच्छे तरीके से काम करते रहें। ठीक है? और आमतौर पे वहाँ पे जहाँ पे वर्कर्स यंग होते हैं और इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं तो वहाँ पे भी ये लीडरशिप स्टाइल बेहतर रहता है और इस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल आ जाता है उसको कहते हैं लेस इज फेयर। यानी इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो बिजनेस डिसीजंस हैं दे आर लेफ्ट फॉर द वर्क फोर्स टू मेक। मीन्स ये आप देखें सब कुछ इसमें क्या किया कि उन्होंने वर्क फोर्स पे छोड़ दिया। अगर हम याद करें कि व्हाट वी हैव इन द ऑटोक्रेटिक स्टाइल कि भाई सारे के सारे डिसीजन मेकिंग कहाँ पे थे? टॉप लेवल पे। अब यहाँ पे क्या आ गया कि सब कुछ उन्होंने वर्क फोर्स के हवाले कर दिया, यानी ये उसका 180 डिग्री पे ट्विस्ट आ गया, रिवर्स आ गया कि भाई हमने कुछ नहीं करना। लेस इज फेयर का मतलब जो मतलब अगर आप ऐसे कहना चाहें कि भाई आप लोग जो बेहतर समझते हो करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी उन्होंने क्या कर दिया, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू द लोअर लेवल। अब इसमें नेचुरली बहुत ब्रॉड उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि भाई स्टाफ और वर्क फोर्स जो है वो सब की सब जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द पावर्स, फॉर ऑल द डिसीजन मेकिंग, फॉर ऑल द रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज। तो भाई वो करेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी चली गई, राइट। अब यहाँ पे एक बात ये आ जाएगी कि क्या यहाँ पे कोई कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा कि भाई कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है? ठीक है, तो आमतौर पे वर्कर्स में ये एक डिससेटिस्फैक्शन का फैक्टर आ जाता है कि उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई किसको हमने रिपोर्ट करना है, किसको कुछ बताना है, राइट। फीडबैक भी बहुत कम होता है क्योंकि मैनेजर्स तो कोई क्लोजली मॉनिटर कर नहीं रहे, उन्होंने तो सब कुछ उनके हवाले कर दिया कि भाई आप करें जैसे आपका दिल करता है आप करें, आपके पास पूरी डेलीगेशन है, अथॉरिटी है। तो एक ये कि जब फीडबैक का फैक्टर नहीं होगा, यानी मैनेजर्स आपको गाइड नहीं कर रहे, आपको लीड नहीं कर रहे, तो नेचुरली क्या होगा, इससे भी एक डिमोटिवेशन आएगी। आमतौर पे ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये कहाँ पे यूज़ होता है? लेस इज फेयर, जैसे हमने कहा कि भाई जहाँ पे मैनेजर या तो बहुत बिजी होते हैं या फिर वो बहुत ही सुस्त होते हैं कि वो किसी चीज़ में इंटरवीन कर सकें। दो ही सूरतें हैं, ठीक है। तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो खाम खा में थोप दिए जाएं, जिनको पता ही ना हो बातों का, तो फिर जो नीचे वर्क फोर्स है, जो लोअर लेवल पे लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये हमारे से बेहतर हैं, लेकिन वो ये शो नहीं करते
तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो उनको पूरे की पूरी डेलीगेशन दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं और कहते हैं कि भाई आप काम करो, हम सिर्फ देखेंगे कि सुपरवाइज करेंगे कि जहाँ पे कोई खास कोई प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे इंटरवीन कर लेंगे। अगरचे उनको खुद भी कुछ नहीं पता होता। तो फिर ये सूरत भी आ गई जहाँ पे लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल को यूज़ किया जाता है। अब ये ज़्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाइल जो है बेहतर रहता है जहाँ पे रिसर्च हो रही हो, क्योंकि वहाँ पे हर कोई अपनी अपनी रिसर्च कर रहा है और ज़ाहिर है जब अपनी रिसर्च कर रहा है तो फिर वो अपनी मर्जी से ही हैज़ अथॉरिटी, ही हैज़ ऑल द डेलीगेशन टू डिसाइड समथिंग। सिर्फ ये होगा कि अगर कोई उसका सुपरवाइज़र है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस सुपरवाइज़र को इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ये लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई किया जाता है। ओके, तो हमें ये 4 लीडरशिप स्टाइल्स पता चल गए। तो नेचुरली मुख्तलिफ लोगों का व्यू मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ मैनेजर्स बिलीव करते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे और वो उसी को इनकरेज करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इससे वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा बेहतर होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्विक रिस्पॉन्स मिलता है टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। दूसरी तरफ ये भी है, कुछ मैनेजर्स ये सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो बहुत बेहतर है, वो अप्रोप्रिएट है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, वर्कफोर्स मोटिवेटेड रहती है और आपके हाँ उसमें टाइम कंज्यूम ज़रा होता है लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं बेहतर हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आपकी सिचुएशन, आपकी मार्केट बहुत डायनामिक है तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो हो जाएगा और आपका कंपेटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। फिर कुछ मैनेजर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि लेसेस फेयर जो लीडरशिप स्टाइल है वो बेहतर है, लेकिन जैसे हमने कहा लेसेस फेयर में तो जब आपने सब कुछ ही डेलीगेट कर दिया तो फिर एट टाइम्स आपकी वो डायरेक्शन लूज हो जाती है। वो फील करते हैं कि जैसे हमें कोई पूछने वाला नहीं तो हम जो दिल करता है करते रहें, तो एट टाइम्स वो भी बेहतर भी रहता है, नहीं भी रहता। तो हर एक के अपने अपने व्यूज़ हैं और नेचुरली जैसे हमने डिस्कस किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली लीडरशिप स्टाइल को चूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक लीडरशिप स्टाइल हर जगह पे चल सके और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक लीडरशिप स्टाइल अगर चल पड़ा तो वो सारी उम्र वही चलता रहेगा, तो लीडरशिप स्टाइल भी चेंज हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसी में हम मैकग्रेगर्स, डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी देख लेते हैं। इससे भी हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम कैसे लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। डगलस मैकग्रेगर ने अपनी रिसर्च के ज़रिए से कंक्लूड किया कि जो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स यूज़ करते हैं मैनेजर, वो बेसिकली उनके डिफरेंट एटीट्यूड की वजह से होता है टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। तो उन्होंने 2 किस्म की थ्योरीज दी जिनको हम नाम देते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। नाउ व्हाट हैपेंस, थ्योरी एक्स के मैनेजर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जी जो वर्कर्स हैं दे आर लेजी, दे आर दे डो नॉट लाइक टू वर्क एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Because of this attitude, we need to have a control and we have to make them work. ठीक है ना, जैसे उर्दू में कहते हैं कि या हमारी जो हरकत हैं कि भाई डंडा जब तक नहीं होगा, जब तक पनिशमेंट नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं होगा कि ओहो ये काम ना किया तो हमारी शामत आ जाएगी, तो वो काम कोई नहीं करता। ठीक है ना, इस पर बहुत सा मतलब एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं, राइट। हम कह दें कि भाई आप काम नहीं करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, आप काम नहीं, आपकी इवन वालदैन, आपकी वालदा आपको जब कहेंगी कि भाई पढ़ो, बैठ के पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नो, व्हाट इज दिस, उनको भी पता है, उनके एटीट्यूड क्या है कि भाई दे डोंट लाइक टू वर्क, दे दे डोंट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा तो फिर डंडे के जोर पे एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो ये थ्योरी एक्स के मैनेजर्स ये बिलीव करते हैं कि नहीं भाई,
काम करवाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ये वैसे काम नहीं करेंगे। तो एक थ्योरी एक्स ये आ गई। उसके बाद थ्योरी वाई उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि थ्योरी वाई के मैनेजर्स जो हैं, दे बिलीव दैट स्टाफ एंजॉय देयर वर्क अ लॉट, और वो तैयार रहते हैं कि वो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो एक्सेप्ट करें, वो क्रिएटिव होते हैं और एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट discussions, in giving the ideas, in giving the solutions to different problems and issues which may arise during the course of the business. तो अब नेचुरली अब ये जो मैनेजर्स हैं जो इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं अपने स्टाफ के बारे में, तो ये उसी तरह से अपने स्टाफ को ट्रीट भी करेंगे। तो जनरली ये व्यू लिया जाता है कि जिस तरह से एटीट्यूड होगा मैनेजमेंट का या मैनेजर्स का टुवर्ड्स द वर्कर, उसी तरह से उनको रिटर्न में बिहेवियर मिलेगा उनका, उनकी वर्कफोर्स का। तो जब आप बिलीव ये करोगे कि काम नहीं करते, इनसे काम करवाना पड़ता है, और ये आपकी अप्रोच ही ये है, तो इससे क्या होगा कि नेचुरली वो भी काम को एंजॉय नहीं करेंगे। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी फीलिंग ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप ये समझते हो कि वो कोई उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी में भी नहीं होती, तो बिल्कुल वो भी फिर पार्टिसिपेट करना छोड़ देंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द वर्कफोर्स, तो उसी की बेस पे वो भी आपके साथ चलेंगे या आपके साथ बिहेव करेंगे। तो इसकी बेस पे हम डिसाइड, अब देखें ये दो थ्योरीज देने का मकसद क्या था इसमें, कि इस एटीट्यूड की बेस पे आप डिसाइड करोगे। जैसे अगर हम हमारी मैनेजमेंट या मैनेजर्स ये सोचते हैं कि वर्कर्स काम को पसंद नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, उनको कंट्रोल की जरूरत है, वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, वो क्रिएटिव नहीं है, तो होगा क्या, वो कहेंगे कि इसमें बेहतर है, इन हालात में बेहतर है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हम यूज कर लें, कि भाई सब कुछ हम ऊपर करें, डिस्कशन करें, डिसीजन मेकिंग लें, डायरेक्शन लें, और नीचे कन्वे कर दें कि भाई ये काम इस तरह से करना है, दैट्स इट। तो अब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का रिलेशन आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा कि किस तरह से इसकी बेस पे हम लीडरशिप स्टाइल को कंसिडर करते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही नहीं है, इस बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करते हैं लीडरशिप स्टाइल। इसमें आ जाती हैं ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कफोर्स, और डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे माइट एक्सेप्ट, ये भी एक फैक्टर आ जाता है। फिर कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है फॉर द कंसल्टेशन एंड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स, ये भी एक फैक्टर है। जितना ज्यादा आपका टाइम होगा उतना ज्यादा आप किस तरफ टिल्ट कर जाओगे, आप डेमोक्रेटिक स्टाइल की तरफ टिल्ट कर जाओगे। फिर जैसे अभी हमने कहा कि एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपका, और जाहिर है कि दिस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनैलिटी एंड बिजनेस बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजर्स, राइट। मतलब आपने किस किस्म के इन्वायरमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम काम किया है। अगर आपने ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की इन्वायरमेंट में ज्यादा काम किया तो आप वही स्टाइल पसंद करोगे, अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल में पसंद की काम किया है तो वो पसंद करोगे। तो इट डिपेंड्स, इस पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और फिर डिफरेंट जो इश्यूज अंडर कंसिडरेशन होते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, उनमें उनको भी हम एक फैक्टर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो भी हेल्प करते हैं हमें कि किस किस्म का लीडरशिप स्टाइल हमें चूज करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने देखा, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है इसको बड़ा इनकरेज किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके भी एक्सपीरियंस के बेस को लेके हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनको उनकी हेल्प मिल जाती है, उनके नेचुरल जो थिंकिंग होती है, जो उनकी आइडिया क्रिएशन होती है वो हेल्प करती है। और नेचुरली इस पर टाइम तो लगता है, लेकिन जो टाइम लगने से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, और उसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम इश्यूज जो हैं वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जगह पे क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को इनकरेज किया जाता है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह पे ही ये सक्सेसफुल होगा। जैसे हमने एग्जांपल दी कि पुलिस है या आपकी आर्म फोर्सेस हैं, वहाँ पे ये लीडरशिप स्टाइल कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, वहाँ पे हमेशा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही बेहतर रहेगा। Okay, so we end up over here and we'll continue with this discussion in the next session. Thank you.